الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی قدر پر اور آپ کی آل اطہار علیہم السلام پر اور اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آپ کے اصحاب پاک پر جو دن رات اپنے تن من دھن سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور بڑا ہی خاص ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے، اور اس میسج کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے ہم مخلوق خدا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی خوبصورت زندگی میں زہر مت گھولیں، اپنی خوبصورت زندگی کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، اپنی خوبصورت اور پروقار لائف کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اس کے وقار کا اور اس کے احترام کا اور اس کے اکرام کا خیال رکھیں۔ بہت ساری ہماری ینگ جنریشن اور ینگ جنریشن کے علاوہ بڑی ایج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس مصیبت اور اس آفت کا شکار ہیں۔ مرد و خواتین، نوجوان لڑکیاں، اکثر ان سے وہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جنات ان کے دشمن بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جنات ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جنات کے سائے کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں جنات کا اور چڑیلوں کا، ڈائنوں کا، ہوائی چیزوں کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہوائی چیزیں، یہ جنات، یہ آسیب، یہ ڈائنیں، چڑیلیں، بدروہیں ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 100% میں سے 50% کم و بیش، یہ میں اپنے ذاتی نالج اور معلومات کے مطابق جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ میرے اپنے ذاتی نالج کے مطابق ہے۔ کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اعداد و شمار میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نالج کے مطابق 50% لوگ ایسے ہیں جو اگر اپنی زندگی میں احتیاط کر لیں، جن چیزوں سے ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بچنا ہے، وہ پرہیز کر لے تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے
यकीन कामिल के साथ है कि वो जिन्नात की शरअंगेजियों से वो महफूज रह जाए। बहुत सारे लोग जिनके ऊपर किसी ने जादू नहीं करवाया, जिनके ऊपर किसी ने अमल नहीं करवाया, जो किसी भी हासदीन के हसद का शिकार नहीं हुए, किसी ने उनके ऊपर तावीज़ात नहीं किए, किसी ने उनके ऊपर वार नहीं चलाया, लेकिन उनकी अपनी हरकत ऐसी हैं, उनकी ज़िंदगी के तौर तरीके ऐसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से वो खुद उन मुसीबतों में घिर गए हैं। वो खुद जिन्नात का शिकार हो गए हैं, वो खुद जिन्नात की शरअंगेजियों से उनका पाला पड़ गया है, उनका वास्ता पड़ गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन्नात किस तरह से आपकी ज़िंदगियों में मुदाखलत करते हैं, आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को और आपकी इस खूबसूरत हयात को वो किस तरह कांटों की राह गुज़र बना देते हैं। आज हमने इस पर बात करनी है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन और पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल देखने वालों के लिए ये तहलका खेज़ इंकशाफात हैं और ये इतनी सच्चाई है कि जिससे हम रूगर्दानी नहीं कर सकते, जिससे हम चश्मपोशी नहीं कर सकते। आप जब इन बातों को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि क्या इन चीज़ों का अमल दखल है, तो आपको खुद को महसूस होगा कि कितनी ही हमारी ऐसी गलतियां हैं, कितनी ही हमारी ऐसी कोताहियां हैं, कितनी ही हमारी ऐसी लग़ज़िशें हैं और हमारी ज़िंदगी में अब हमारे अपने से वो भूल चूक हो रही है जिसकी वजह से हम इनकी शरअंगेजियों का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में कैसे जहर घुलती है, हमारी लाइफ के अंदर किस तरह ख़ज़ां आती है दुखों की, किस तरह सुखों के सवेरे ख़त्म होते हैं, किस तरह हमारी खुशियों को बर्बाद किया जाता है, हमारी ज़िंदगी के शब व रोज़ किस तरह अज़ियत का बायस बनते हैं, हमारी ज़िंदगी के लम्हात और ये खूबसूरत लम्हात किस तरह बदसूरती की तरफ, बदअमनी की तरफ धकेल दिए जाते हैं। देखते हैं कि हमारा उसमें अमल दखल क्या है। तो आइए नाज़रीन, अगली बात को तवज्जो से समाअत फरमा लें। इस पूरी वीडियो को आप तवज्जो से सुने और आखिर तक सुने। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये ठंडी हवा का झोंका साबित होगी और आपके लिए ये फ़ायदा बख्श, नफ़ा बख्श और शिफा बख्श पैगाम होगा। हमारी बहनें और बेटियां घर के अंदर सफाई करती हैं, कचरा, कूड़ा और इस तरह की जो वेस्ट होती है हमारे घर के अंदर, उस कचरे को उठा के अपने ही दरवाजे के आगे रख देती हैं। और आपको पता है कि कचरा, कूड़ा शैतान की अमाजगाह है, जिसके ऊपर शैतान बैठता है। तो जिस जगह शैतान बैठेगा, जिस जगह शैतान बसेरा करेगा, आप खुद सोच लें कि वहाँ अल्लाह की रहमत होगी या ज़हमत होगी। वहाँ वो जगह तकलीफ़ का पेश खैमा होगी या वो अमन और सुकून का प्रचार करने वाली जगह होगी। तो यकीनन जवाब होगा कि वो शैतान की अमाजगाह जो है वो रहमत का बायस नहीं बल्कि ज़हमत का बायस है। और इसके अलावा हमारे घरों के अंदर हमारी ही माएँ, बहनें, बेटियां वो सफाई करते हुए भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती और घरों के अंदर जाले लग जाते हैं। उन जालों की वजह से भी साए का अमल दखल हमारे घर के अंदर बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, हर वक्त नापाकी का रहना, हर वक्त नापाकी का रहना। घर के अंदर पेशाब है, पखाना है और इसके अलावा नजासत है, तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की उस जगह पर रहमत नहीं बरसती बल्कि वहाँ पर शैतानी चीज़ों का अमल दखल हो जाता है।
اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وہ کپڑے، وہ مستعمل چیزیں، وہ استعمال شدہ کپڑا جو کہ گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، وہ بلیڈنگ سے بھرا ہوا کپڑا گھر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کپڑے کو اتنا ہلکا لیا جاتا ہے، وہ کپڑا پڑا ہو تو وہ کپڑا بھی شیطان کی آماجگاہ ہے، اور شیطانی چیزیں جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کا اثر اتنا بڑھتا ہے کہ وہ بلڈ جو مخصوص ایام کا ہے، مخصوص پیریڈز کا ہے، اس کپڑے کو ویسے ہی بے فکری کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے، یا ایسے وقت کا ایسا مستعمل کپڑا اس کو بر وقت دھویا نہیں گیا، صاف نہیں کیا گیا، اسی طرح رکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی وہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس انسان کا وہ کپڑا مستعمل ہوتا ہے، استعمال شدہ کپڑا، وہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں، وہ شیطانی چیزیں اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ تو ان کپڑوں کو رکھنے کی وجہ سے ان دھلے کپڑے، اس کپڑے کو آپ نے ضائع کرنا ہے، اس کو دھو کے ضائع کریں، اس کپڑے کو آپ نے دوبارہ سے استعمال میں لانا ہے تو دھو کے استعمال کریں، واش کریں اس کو اچھی طرح، واش کرنے کے بعد اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو استعمال میں لائیں، نہیں تو اس کو پھینکنا بھی ہے تو اس طرح نہ پھینکا جائے، اس طرح پھینکنے سے اس خون کی جو گندی سمیل ہے اس کے اوپر وہ گندی چیزیں براجمان ہو جاتی ہیں، اس کو اپنا قیام گاہ بنا لیتی ہیں، اس کے اوپر بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ شیطان ہے ہی نجس اور نجاست والی چیزیں اس کو پسند ہیں، تو وہ منحوس اور ملعون چیزیں، پلید چیزیں، شیطانی چیزیں اس کے اوپر جب وہ اپنا بسیرا کرتی ہیں تو جس انسان کی وہ مستعمل چیزیں ہوتی ہیں، مستعمل کپڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی ان کا عمل دخل بڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کہ ان کی زندگی میں ان کی شرانگیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کی شرانگیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ان کی شرانگیزیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر اس مریض کا، اس شخص کا، اس خاتون کا حال کیا ہو جاتا ہے، اس پیشنٹ کا، اس کی علامات کیا ہو جاتی ہیں؟ سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پورا جسم گرم رہنا لگتا ہے، ناک اور منہ سے گرم ہوا کا اخراج ہوتا ہے، اور جسم کے اندر ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آگ کی تپش ہے، جیسے آگ کی حرارت ہے، آگ تپ رہی ہے اس کے وجود کے اندر، اور ایسے مریض کو پھر خواب کے اندر پخانہ نظر آتا ہے، گندگی نظر آتی ہے، اپنے جسم کے اوپر وہ پخانے کو، گندگی کو دیکھتا ہے، خود کو لیٹرین میں زیادہ دیکھتا ہے، پخانہ کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے، اور جنسی خواہش اس کے اندر حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی طلب میں زیادتی آ جاتی ہے، طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، جنسی خواہشات کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور کمر میں اور گردوں کے اندر اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، معدے کے اندر اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا معدہ پکڑا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، دل کی دھڑکن اس کی اپنی روٹین وائز رفتار سے تیز ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے اندر، اس خاتون کے اندر، اس مرد کے اندر، اس انسان کے اندر چڑچڑا پن بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، نماز سے دوری، نماز سے غفلت، نماز کے وقت اس کا جسم بوجھل، اور اگرچہ نماز کا ٹائم نکل گیا ہے وہ بالکل حشاش بشاش ہو جائے گا، لیکن جتنی دیر نماز کے لیے وہ نیت کرتا رہے گا اس کا جسم بوجھل ہوتا رہے گا، سستی ہوتی رہے گی، غفلت ہوتی رہے گی،
और उसकी तलब में ज़्यादती आना शुरू हो जाएगी। गलीज कामों की तरफ, गंदे कामों की तरफ, बेअदबियों की तरफ, गुस्से की तरफ उसकी तलब बढ़ती जाएगी। घबराहट महसूस करने लगेगा और बेसुकूनी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। नमाज से दूर और अल्लाह से मोहब्बत में कमी आना उसकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में कमज़ोर होती चली जाएगी। जिस समय उसको आग लगती महसूस होगी, सुइयां चुभती महसूस होंगी, उसके वजूद के अंदर सुइयां चुभेंगी, महसूस होगा जैसे मुझे कोई सुइयां चुभो रहा है, कील चुभो रहा है मेरे जिस्म के अंदर। ऐसे लगेगा जैसे कोई वर्मे से सुराख कर रहा है उसके जिस्म के अंदर, जैसे उसको कांटे चुभोए जा रहे हैं। उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और मुख्तलिफ चीज़ें रखने के बाद भूल जाएगा, बात करने के बाद भूल जाएगा, बाद में तलाश करेगा। बाज़ औक़ात कुछ को महसूस करेगा कि कोई उसका गला दबा रहा है, उसकी चेस्ट के ऊपर वज़न आना शुरू हो जाएगा। सोते हुए उसको बाजू से पकड़ के कोई हिलाएगा, कोई उसके टांग को पकड़ के हिलाएगा, कोई उसका पाँव पकड़ के, अंगूठा पकड़ के, कोई फिंगर पकड़ के उसको हिलाएगा। ये कैफियत उसकी होंगी। ख्वाब में डरेगा, डर के उठ के बैठ जाएगा, ये उसकी कैफियत होगी। अजीबो गरीब ख्वाब उसको नजर आएंगे। बाज़ औक़ात कोई जानवर उसको तंग करना शुरू हो जाएगा, वो जानवर नहीं होंगे, वो ख्वाब के अंदर भी उसको वो शैतानी चीज़ें तंग करना शुरू हो जाएंगी। और अगर उसके ऊपर खून के जादू के तावीज़ लिखे गए हैं किसी जानवर के, बाज़ औक़ात जादूगर छिपकली की वो लिक्विड से तावीज़ लिखते हैं, बाज़ किसी जानवर के तावीज़ खून से तावीज़ लिखते हैं। उसको उस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। छिपकलियाँ उसको कसरत से नज़र आएंगी और उसको बलाएँ नज़र आएंगी, उसको मुख्तलिफ़ तरह की इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। और कुत्ते, बिल्लियाँ, रीछ, बंदर, सांप उसको नज़र आएंगे, लाल बेग, बिच्छू उसको नज़र आएंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको नज़र आएंगी। और बाज़ औक़ात उसको नज़र आएगा कि वो वॉमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है, उल्टियाँ करते हुए अपने आप को देखता है। यानी कि गंदी चीज़ें उसको, ये मैंने अलामात वो बताई हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें सवार हो जाती हैं, जिनके ऊपर उनकी ज़िंदगियों में इन चीज़ों के अमल दखल बढ़ जाते हैं। उन लोगों की कुछ मैंने अलामात आपके सामने रखी हैं। ये जो अहम अलामात हैं वो मैंने आपके गोश गुजार की हैं, ताकि ख़ुद आप अपनी तशख़ीस कर सकें, आप अपने आप को खुद चेक कर सकें कि मेरे ऊपर जिन्नात का असर है या नहीं है, मेरे ऊपर इन गंदी चीज़ों के असरात हैं या नहीं हैं, मेरे ऊपर ये मामलात हैं या नहीं हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है? मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, जिगर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है और चेस्ट के अंदर उसको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात लगेगा उसको मेरा दिल कोई पकड़ रहा है, दिल उसके ऊपर किसी ने पंजा डाल दिया है, दिल को किसी ने काबू में कर लिया है। ऐसी उसको फील होगा कि मेरे सर को किसी ने जकड़ दिया है, मेरा सर किसी ने बांध दिया है। वो टेंशन महसूस करेगा, तकलीफ़ महसूस करेगा, किसी जगह उसको चैन नहीं आएगा। ऐसे हालात में घर वाले क्या करते हैं? किसी पागल खाने में ले जाते हैं, उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वो मेडिसिन देंगे, लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा चिढ़ करेंगी और उसकी उस पोजीशन को उठा के और ज़्यादा उसको जिस्मानी मसाइल के अंदर, वो जिस्मानी मसाइल की दलदल में फेंक देंगे। या फिर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं कि शायद इसको कोई साइको मामला है, ये साइको हो गया है। उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका अपना वो पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन उसके पास जाकर भी उसका हल नहीं निकलता। यूं होता है मर्ज बढ़ता गया जैसे जैसे दवा की, जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया। तो मर्ज जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है? फिर उनको लाया जाता है किसी अल्लाह वाले के पास। लेकिन अल्लाह वाले के पास लाने से भी पहले किसी आमिल के पास ले जाते, किसी आमिल के पास ले जाते, किसी नाकस के पास। ये आमिल नहीं होते, नाकस होते।
जिनको शरा शरीयत का पता नहीं है, जिनको कुरान और सुन्नत का पता नहीं है, जिनको वुजू का, तहारत का पता नहीं है, ऐसे आमलों के पास ले जाते हैं। अब वहां पर भी जाके मामलात बढ़ते हैं। आखिर पे जाके फिर जब लोग कहते हैं किसी से दुआ ले लो, किसी से दुआ करवा दो, अब जब अल्लाह वालों के पास आते हैं तो अल्लाह वाले बताते हैं इसका सदका और खैरात करो। अब वो अल्लाह वाला वो है जो अल्लाह वाली बात करे, अल्लाह वाला वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात करे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सदक़ात रद्दुल बलियात वल आफात। मैं अक्सर ये हदीस मुबारका सुनाया करता हूँ, सदका और खैरात दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। सदका वैसे ही शिफा है। सदके का माना है सिदके दिल से, सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ। और अब हम सदका करते हैं तो सदका भी जब तक खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ ना किया जाए तो उसका फायदा नहीं होता, खातर खा फायदा नहीं होता, प्रॉपर उसका फायदा नहीं होता। इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मामला, और जाहिर है जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा उसका इलाज और उतनी बड़ी उसकी मेडिसिन, ये तो जरूरी है। लेकिन अब किसी अल्लाह वाले ने हमें इस्तगफार का बोला, इस्तगफार को लाजिम पकड़ो, यह भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। सदका और खैरात करो, यह भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मैं फिर बता दूं कि अल्लाह वाले का काम है कि अल्लाह की बात करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करे। वो अपनी बात नहीं करते। अल्लाह की राह में गुरबा व मसाकीन को, दीन के तालिब इल्मों को, मसाकीन को, गुरबा को, यतामा को, मुसाफिरों को, और ये अक्सर तालिब इल्म मदारस के अंदर, दीनी इदारों के अंदर होते हैं, मैं तो फौकियत देता हूं उनको कि ये मुसाफिर भी हैं, गरीब भी हैं, यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं, इनके अंदर मुसाफिर भी हैं, नदार भी हैं, और इनकी खिदमत में वो खर्च करो। अब वो सदका और खैरात जब करने की बारी आती है तो फिर भी वहां हीलो हुज्जत से हम काम लेते हैं। नहीं, वहां खुश दिली के साथ, फराख दिली के साथ करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का गजब, अल्लाह का कहर वो ठंडा हो जाए और खुशी हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशी हासिल हो जाए। बसूरत दीगर अगर यहां से भी हम फिसल गए तो ये जिन्नात ऐसे ऐसे असर दिखाते हैं कि नौजवान लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करते हैं, मर्दो खवातीन के साथ हम बिस्तरी करते हैं, और उनके साथ बदफेलियां करते हैं, लवातत करते हैं, जिना करते हैं। ये शैतानी जिन्नात, ये शैतान, ये शैतानी चीजें उनकी जिंदगियों को तबाह करके रख देती हैं। मेरे पास 2 मियाँ बीवी आए, ये मैं वाकया इख्तिसार के साथ 1-2 जुमलों में आपको बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त इस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ये वाकया जो है ये छोटा सा नहीं है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ इसके ज़िमन में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो आज भी जिंदा हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनका पर्दा मुझे बहुत अजीज़ है कि वो लोग कोई तकरीबन 50 और 60 के दरमियान में उनकी एज होगी। तो उनके साथ ये वाकया पेश आया कि शैतानी चीजें दोनों मियाँ बीवी के साथ लवातत करती रही, उनके साथ जिना करती रही, बदफेलियां करती रही, और इस तरह खड़े होकर सामने गंदी और भयानक शक्लों के अंदर वो कहते थे कि जाओ, हमने नहीं जाना, हम तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना देंगे। तो मैं अपने नाजरीन को ये कहना चाहूँगा पीर अबू नुमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों की अगर एहतियात कर लें, इनसे बचने की तदाबीर इख्तियार कर लें, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका इलाज आप खुद कर सकते हैं। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने गली को साफ़ सुथरा रखें। वैसे भी
सफाई को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निसफ ईमान है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तो पाकीज़गी इख्तियार करना वैसे भी अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है। तो जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो शैतान को तो पसंद नहीं है ना, और शैतान की पैरोकारों और उसके चेले कड़छों को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हमें हासिल हो जाए, खुशनुदी हासिल हो जाए, तो फ़ायदा आपका है। खुशनुदी भी मिलेगी, रज़ा भी मिलेगी और फ़ायदा भी आपका होगा। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने गली को साफ़ सुथरा रखें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इतना काम करने से कई तकलीफ़ों से, कई मसाइब से आप बच जाएंगे। और फिर हमारी वो दीनी इस्लामी बहनें और बेटियां, वो घरों के अंदर अपने मुस्तामल कपड़ों को, ये शरई मसला है, उन कपड़ों को महफूज करें और उनको धो कर इस्तेमाल करें और उनको उस तरह ना रखें। घर के अंदर कोई भी नजस कपड़ा जो है उसको पड़ा ना रहने दें। और ख़ास तौर पर ये जो ब्लड वाले कपड़े हैं, इनको तो बिल्कुल, इनके बारे में ज़रा सी भी गफलत ना बरतें। इनकी वजह से, इन कपड़ों के कंधों पे सवार होकर, इन चीज़ों के ऊपर सवार होकर वो चीज़ें आपके घर में दखल अंदाजी कर देती। और अपने वाशरूम के अंदर जब भी जाएं, ये दुआ पढ़ के जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और बाहर निकलते हुए गुफरानका, ये पढ़ना मामूल बना लें। और नंगे सर वाशरूम में न जाएं, अपने सर को ढांप के वाशरूम के अंदर जाएं। जब ये दुआ पढ़ के कोई रफ़ा हाजत के लिए, कज़ाए हाजत के लिए जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मामूर हो जाते। और जो बंदा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, इसको भी लाजिम करें। फजर की नमाज को नहीं पढ़ता, उसके कानों में शैतान पेशाब कर देता है। जब कानों में शैतान पेशाब कर देता है तो उसके अंदर शैतान के जरासीम आएंगे या पहले वाले ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, यकीनन यकीनन अगर आप सुबह की नमाज के लिए नहीं उठते, सोए रहते हैं, शैतान आपके कानों में पेशाब कर देता है। और वो अगर इसको आप अपनी आदत बना लेते हैं, मामूल बना लेते हैं, तो फिर तो डेली पेशाब कर कर के सत्यानाश बंदे का कर देगा और उसके ऊपर शैतानी चीज़ें हमलावर नहीं होंगी तो और क्या होगा। तो फिर हम अक्सर अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से इन चीज़ों में कई लोग मुब्तला हो जाते हैं। मैंने अलामात बयान कर दी हैं, मैंने उसके मामलात बयान कर दिए हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद लगी हो तो इसको अपने प्यारों को तक, इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। और पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल के अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फेसबुक पे लगाएं, अपनी फेसबुक आईडी पे लगाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। अपने हल्का अहबाब में पहुंचाएं, अपने प्यारों को पहुंचाएं, ताकि वो भी इन चीज़ों के शर से बच सकें। कर भला हो भला होगा भले का भला। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बटन को, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। देखते रहिए पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।